Hello students, welcome to lecture number 17 of Aldehydes, Ketones and Carboxylic acids. As we know that in the case of reactions or chemical reactions of aldehyde and ketones, various categories, likewise nucleophilic additions reactions followed by eliminations of water, reduction of aldehydes and ketone, oxidations of aldehyde and ketones. So these categories, 4 different categories that we have to completed in our prior sessions. Today is the most important session for a board, but mainly for a JEE as well as NEET aspirants. So today we starts with a 12.4 and the sub-classified point number 5 is the reactions with alkalis. So here the questions arise why the aldehyde and ketone react with alkalis. It means that either aldehyde and ketones, they are acidic in nature because alkali is a basic in nature. So if the base is reacted with such a type of acidic portions of aldehyde and ketone, yes. That's why first we starts with the acidity of alpha hydrogens. So what is the meaning of acidity of alpha hydrogens? And the reactions is called as an aldol condensation reactions. Here there is a term is called as an condensation that we have to already earlier stage in the case of when we classified title number 2 nucleophilic additions reactions followed by eliminations of water molecule as a whole is called as condensation reactions. So what is the definitions of condensation? I think so in your portions of polymer. So there is a condensation polymers like nylon, XX, terylene, right? Bakelite, melamine. So various type of the polymer is a classified under the condensed polymer or the polymer which can be formed with the help of condensation reactions. But what is the meaning of condensation reactions? So condensation is defined as the combination of 2 or more molecules of the same or different compounds. It means what is the meaning of combination means addition. First we have to add the molecule. दोनों मोलेक्यूल सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, राइट? 2 भी हो सकते हैं, 2 अभी तो हम 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं. यूजुअली विद द अगर ज्वाइंट हो जाए, एडिशन हो जाए, बाद में वहां पे एलिमिनेशंस ऑफ सच अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा. So this is the concept of a condensation reactions, right? Condensation reactions once again is a combinations of 2 or more molecules of the same or different compounds, usually with the eliminations of a simple molecule such as water, hydrochloric acid, ammonia, alcohol, etc. Okay, so this is about the what is the concept of condensations. Okay, another point is like that is another important characteristics of a carbonyl compound is the acidity of hydrogen atoms present on the carbon atom next to the carbonyl group. यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जैसे मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है जिसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके जो बगल में कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, अगर उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है एंड दिस अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर. So once again, another important characteristics of carbonyl compound is the acidity of hydrogen atoms present on the carbon atom next to carbonyl group, and this carbon is called as an alpha carbon and the hydrogen is attached to it is called as an alpha hydrogen. Now this alpha hydrogen is acidic in nature, so the acidity of alpha hydrogen is what? Why this alpha hydrogen is acidic? So the acidity of this alpha hydrogen is due to the electron withdrawing nature of a or minus I effect of the carbonyl group. We know that in the case of carbonyl group, O is more electronegative than carbon, so they withdraw the bonded electron pairs towards to them,
So carbon is partially positive in nature, and this effect runs through the adjacent carbon. So that's why the carbonyl group which withdraws electron from the adjacent CC bond. So this makes alpha carbon electron deficient. So alpha carbon electron is deficient. It means that alpha carbon in turn withdraws electron from the alpha hydrogens. So as a result, the electron density in alpha hydrogen is decreasing. It means your alpha hydrogen is now weakly held. So it's a partially positive nature of alpha hydrogen. So hence can be easily abstracted by a strong base. Okay, so they're giving a enolate anions and which are stabilized by resonance. यहाँ पे हमें ये बताया गया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे पास है C डबल बॉन्ड हो और ये बगल में कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है. देखिए, सो कार्बोनिल कार्बन कंटेनिंग, ओके, उसके जो नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन विच इज अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू दिस अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज एन अल्फा हाइड्रोजन. वी नो दैट द nature of oxygen is more electronegative, so they attract electron towards to them. So at that time, this CC bond is a stronger in nature, so the bond length is decreasing. So naturally, this carbon is a more electropositive. So the next effect, they withdraw the electron from the CH bond 2, and now hydrogen is a H delta plus, and this it means that it's weakens in a nature. So definitely they attracted towards to the alkali. So now if we add an alkali, so this alkali is attracted towards to this partially positive hydrogen or alpha hydrogen, and they remove as a water, and we get a certain type of product, C double bond O. Mind well, it's a carbanion, and there is a resonance phenomena can take place, and we get a product is like that, C double bond O minus. This is nothing but the portions, these resonance, these anions, okay, which is stabilized by the resonance phenomena, and this is called as an enolate. Once again, so they stabilize by the due to the electron withdrawing nature. So as a result, the electron density in alpha hydrogen bond decreasing. So other words, alpha hydrogens are weakly held and hence can be easily abstracted by a strong base, giving enolate. What is the meaning of the carbanion formed by the abstractions of alpha hydrogen for carbonyl compound is called as an enolate ion. When the name is okay, fine. Okay, here in this case, the acidity of this alpha hydrogen, is partly due to minus I effect of carbonyl group, which weakens this bond, CH bond, and partially due to the resonance stabilizations of the resulting anion. वो क्या है कि यहाँ पे वो स्टेबिलाईज हो रहा है, इसलिए भी रिएक्शंस फॉरवर्ड जा रहा है, इसलिए भी वो H है, OH के पास जा रहा है. फर्स्ट वन एसिडिक है, उसकी वजह से एसिडिक क्यों है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है और उसको जाना भी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे जाने में उसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी रेजोनेंस फिनोमिना वो फॉरवर्ड रिएक्शंस की तरफ चला जाएगा. सो इट मे बी नोटेड हियर दैट not only alpha hydrogens are acidic, okay, beta, gamma, delta, etc. hydrogens are not acidic because the inductive effect decrease with the distance and the resulting carbanions are not stabilized by resonance. ये आपको थोड़ा ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया अभी दिखाया, इसमें आपको एक ही बात पहचाननी पड़ेगी कि आपको एल्डिहाइड ढूंढना है. जो एल्डिहाइड है उसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल बगल में जो कार्बन है वो देखना है, उसके पास कोई हाइड्रोजन है, जो है तो वही अल्फा हाइड्रोजन है, और वही अल्फा हाइड्रोजन अल्कली के साथ रिएक्शंस करेगा और उसको इनोलेट में कन्वर्ट करके सिंपली फर्स्ट एक जो रेजोनेंस फिनोमिना से स्टेबल हो जाएगा. तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे कहीं लोगों को ऐसा भी क्वेश्चंस हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा. पहले मैं आपको एक और बात मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ. अभी जो इसमें जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है, तो वो जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है वो है सेल्फ आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस. अभी देखिए 2 आल्डोल कंडेंसेशंस मेरे सिलेबस में है.
मैं आपको जो ये पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड की तरह से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज मैं तो बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। जेडब्ल्यू एडवांस काफी क्वेश्चंस यहाँ से उसने निकाले हुए हैं। जेडब्ल्यू मेन में भी यहाँ पे कोई भी शिफ्ट होगी तो एक या दो जो क्वेश्चंस है, अगर वो अल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी पूछना चाहते तो उसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो यहीं पे ही है, एज वेल एज नीड टू, राइट। तो आपको थोड़ा इसमें मैं उसको ट्रिकी पोर्शन से भी मैं आपको दिखाऊंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। हमें अल्डोल बनाना है। अल्डोल का मतलब क्या है? अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम अल्डोल कंपाउंड बोलेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए, मैं एक तरह से आपको थोड़ा अलग तरह से समझ, जैसे 2 मोलेक्यूल्स ऑफ एन अल्डिहाइड, 2 मोलेक्यूल्स अल्डिहाइड के या कीटोन के, एक अल्डिहाइड एक कीटोन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो क्रॉस हो जाएगा तो उसको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो आज मैं आपको सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में ही आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, 2 molecules of an aldehyde or a ketone, but उसकी जो कंडीशंस क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, which is reacts with a dilute alkali like sodium hydroxide, sodium carbonate, बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसने डाइल्यूट बोला है, वीक नहीं बोला है। आप देख लीजिए, राइट। डाइल्यूट अल्कली to form a beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone respectively. This beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone is self called as an aldol. इसको ही aldol हम बोलते हैं। देखिए, मैं आपको एक रिएक्शन दिखा रहा हूं। जैसे 2 मोल मैंने इथेनॉल लिए हुए हैं, एक इथेनॉल है और दूसरा भी इथेनॉल ही है, राइट। सो 2 molecules of an aldehyde when reacts with in presence of dilute NaOH। अब देख लीजिए, मैं उसको अभी तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको उसका पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप में आपको समझाऊंगा। उसमें क्या हुआ है? CH3 है, यहाँ पे CHOH CH2OH है। देखिए आप यहाँ पे ये है, इसको बीटा हाइड्रोक्सी बोलेंगे हम, राइट। सो इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, पहले क्या होगा? CH3 CHO से डाइल्यूट NaOH के साथ जो रिएक्शंस करेगा तो मुझे वो यहाँ पे CHO होगा, राइट, CHO। सो इसको हम बोलेंगे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे देखिए CH3CO CH3 कीटोन है। मुझे मालूम है यहाँ पे क्या होगा? ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, उसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यानी हम डाइल्यूट NaOH से रिएक्शंस करेंगे तो CH3OH CH3 CH2CO CH3 भी वो बना देंगे। लेकिन ये कैसे बन रहा है, क्यों हो रहा है, मैं आपको अभी उसका मैकेनिज्म भी समझाना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी ऐसी बात करना चाहता हूं। देखिए, जैसे मेरे पास फॉर्माल्डिहाइड है, राइट, मेरे पास एक बेंजाल्डिहाइड है। अब देखिए, बेंजाल्डिहाइड भी आप देख लीजिए, राइट। और मेरे पास है बेंजोफिनोन, एक मेरे पास स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, बेंजोफिनोन। आप तीनों स्ट्रक्चर देखिए, राइट। देखिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने फर्स्ट फॉर्माल्डिहाइड दिखाया हुआ है, बेंजाल्डिहाइड दिखाया हुआ है, बेंजोफिनोन दिखाया हुआ है, वो डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। वो अल्डोल कंडेंसेशन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। देखिए आप, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहाँ पे अल्फा कार्बन दोनों बाजू है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इट मींस दैट वो सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कर नहीं पाएंगे। Okay, so the rules for the self-aldol condensations or the rules for the acidity reactions with the alkalis. So first you have a acidity of a alpha hydrogens. ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अब आप देखिए, मैं आपको एक और तरह से भी समझाना चाहता हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, इसका थोड़ा हम सेटिंग कर ले।
ये जो है वो मैं आपको एक पहले सिंपली मैकेनिज्म आप समझिए, राइट। मैंने थोड़ा अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैकेनिज्म है अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है। द अल्डोल कंडेंसेशंस ऑलवेज अकर थ्रू द दिस 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेप्स। उसका 3 स्टेप में प्रोग्राम है। फर्स्ट प्रोग्राम हम देखना चाहते हैं, जैसे मैंने ये ब्लू कलर में पूरा दिया हुआ है, वो है इथेनॉल। देखिए आप एसिटाल्डिहाइड देख लीजिए। आप जैसे भी आप एसिटाल्डिहाइड देखेंगे, आप पहले देखिए ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। फाइन। अगर मैंने उसका जो ये H है वो अल्फा हाइड्रोजन का होगा, तो वो OH के साथ उसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। सो वी नो दैट दिस OH इज रिएक्टेड विथ H डेल्टा प्लस। So at that time your CH2 bond or this bonded electron pair is attracted towards to the CH2. Fine. तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिलेगा CH2, right? CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा मुझे मिल गया। CH2 है वो देखिए आप, ये माइनस नेचर में है, राइट, और CHO है। अभी क्या होगा कि इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए, तो मुझे ऐसा और ऐसा दोनों तरफ का स्ट्रक्चर्स मिल सकता है, क्योंकि उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, और ये जो इनोलेट है उसको वो स्टेबल कर लेता है। इसको इनोलेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C भी है, देखिए, और OH का भी वो कॉम्बिनेशन कर रहा है, इसलिए उसको इनोलेट बोल रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इनोलेट का आविष्कार हमने किया, इनोलेट हमने बनाया, राइट। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। जो ये इनोलेट बना था, जो अभी हमने ऊपर बताया हुआ है, देखिए आप ऊपर अभी फिर से देख लीजिए आप। तो ये जो इनोलेट है वो दूसरा जो एल्डिहाइड है, पहला एल्डिहाइड का तो हमने इनोलेट बनाया, और जो दूसरा एल्डिहाइड है एक भी इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे O है वो डेल्टा माइनस है, और ये है डेल्टा प्लस है, बराबर, बिल्कुल। ये है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो कहां पे करेगा? C, तो वहां जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्टिंग O की तरफ हो जाएगा। सो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। So once again, in the first step, the base OH which abstracts the one of the acidic alpha hydrogen to form an enolate ion, right? Okay, which is stabilized by resonance. Then after, the enolate ion being a strong nucleophile which attacks towards to the carbonyl group of a second molecule of acetaldehyde. So the second molecule किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और उसने एक एनाइन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे ये जो रिएक्शन है उसका उसने एनाइन बनाया हुआ है। अभी थर्ड स्टेप क्या है? सो थर्ड स्टेप देख लीजिए, जो ये एनाइन था और जो फर्स्ट रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ जैसे H और OH ने जो पानी निकाला हुआ था वही पानी फिर आ गया है। देखिए H और OH का जो वाटर मॉलिक्यूल्स का उसका जो कॉन्सेप्ट है वही मैं दिखा रहा हूं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि अभी जो H है ये माइनस है, जो आपका माइनस पोर्शन है, राइट, विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टू दिस H, उसका जो H के साथ उसका रिएक्शन, तो एट दैट टाइम OH है जो ये बॉन्डिंग पेयर OH के साथ चला जाएगा, और ये जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वही अल्डोल प्रोडक्ट है। अल्डोल इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्कोहल है, सो इट्स कॉल्ड एज एन अल्डोल, राइट। और कई बार उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल रहे हैं। बीटा मीन्स यानी दिस इज अल्फा बीटा, तो उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल रहे हैं। सो दिस वाइट इट्स कॉल्ड एज एन अल्डोल। तो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, और स्टेप 3 में दिस एनाइन इज फाइनली एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर एंड टू फॉर्म अ अल्डोल। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक आपको एक पूरा जो उसका जो समझना चाहते थे वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक और उसका स्टेप भी है, लेकिन ये स्टेप है ना, ये कंडेंसेशन का कंप्लीट हो गया है, यानी अल्डोल बन गया है। अभी उसका डिहाइड्रेशन भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे उसका डिहाइड्रेशन किया हुआ है। देखिए ये जो OH है उसके जो बिल्कुल यहाँ पे है, अब अल्फा बीटा हम दूसरी तरफ से हम देखना चाहते हैं, दूसरा अल्फा बीटा में दिखाना चाहता हूं। अभी ये जो है ना वो अल्फा है और ये बीटा हो गया, जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां से OH निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए आप, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। हमें जानते हैं इसका नाम है ब्यूट 2-in-1-al, और उसको क्रोटोनाल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस aldol कंडेंसेशन व्हेन हीटेड विथ
डाइल्यूट एसिड विच इज अंडरगो डिहाइड्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अब देखिए आप यहाँ पे जो आप देखिए दिस इज अल्फा है और दिस इज बीटा अब हो गया, तो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में वो कन्वर्ट हो गया है। ये फर्स्ट वन। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाना इसलिए चाहता हूं कि 2 या 3 बार आपको एक बार देख लेंगे तो आपको इसको बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको दूसरा मेरा एग्जांपल है ना वो प्रोपेनॉल का है। देखिए तो CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, इट्स अ प्रोपेनॉल। यस डेफिनेटली इट्स अ प्रोपेनॉल, राइट। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। देखिए प्रोपेनॉल है। अब इसमें ये जो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, यस। उसके पास हाइड्रोजन है, यस, विच इज एसिडिक इन नेचर, यस। तो वो बेस के साथ जुड़ेगा, डेफिनेटली जुड़ेगा। तो जो ये आपका जो OH है वो H की तरफ जाएगा और ये जो है वो कार्बन की तरफ चला जाएगा। ये जो स्टेप है हमारा, जो फर्स्ट स्टेप है वही स्लो स्टेप है और वही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है। यही हमारा क्या है, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है। वही इसका रिएक्शंस का पूरा जो है उसका जो जस्टिफिकेशन है और उसका जो क्लैरिफिकेशन है वहीं से ही हमें पता चलेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे इनोलेट आयन हो गया। देखिए आप यहाँ पे CH3 है, ये तो माइनस फॉर्मेट में आ गया है और यहाँ CHO और उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बताएंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं। अब क्या होगा, ये जो हमारा इनोलेट आ गया है, इनोलेट विच इज अ बेस्ट कार्बन आयन। देखिए आप बहुत बढ़िया कार्बन आयन है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विच इज अटैक टूवर्ड्स टू। अब देखिए दूसरा मेरे पास प्रोपेनॉल का है, ये डेल्टा प्लस है और डेल्टा माइनस है, फाइन। मैं आपको बता रहा था ये जो मेरा है वो स्टेप 2 चला शुरू हो गया है। फर्स्ट वन था वो जो स्टेप 1 था, अभी स्टेप 2 का मेरा प्रोसेस चल रहा है। स्टेप 2 के प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ ने उसने अटैक किया तो एट दैट टाइम योर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू द ऑक्सीजन, सो इट्स कन्वर्टेड, दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज कन्वर्टेड इनटू एनाइन। तो ये मेरा दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया। अभी तीसरा स्टेप है, जो तीसरा स्टेप है वो स्टेप 3 है। जो हमारे पास पहले जो पानी यहाँ पे मिला हुआ था, ये पानी के साथ अभी उसका जो एनाइन का रिएक्शंस होगा, द एनाइन वी नो दैट दिस एनाइन इफ फाइनली abstract a proton from a water, तो ये क्या चला, ये OH यहाँ पे चला जाएगा और ये जो है वो अट्रैक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका ही नाम क्या है, उसको अल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन माने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड एज एन अल्डोल कंडेंसेशन मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। और जो आपको अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे बताया हुआ है तो वही अल्डोल कंडेंसेशन में अभी मैं क्या करूंगा, in the case of the product of this aldol condensation when is heated with a dilute acid, यहाँ पे मैं उसका डाइल्यूट एसिड के साथ, सो वो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। सो दे अंडरगोज द डिहाइड्रेशन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ, अभी मैं यहाँ पे एक थोड़ा अलग तरह से, क्योंकि अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं ये अभी ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बिटवीन दिस अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए दिस इज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड आपको मिल गया। यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, पानी निकल गया। तो मुझे ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन उसमें पहले मुझे ये स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको जो बताया हुआ है, मैंने एक इथेनॉल का एग्जांपल दिया हुआ है, एक मैंने प्रोपेनॉल का एग्जाम दिया हुआ है। ये जो टॉपिक है ना बहुत बढ़िया है, अभी नेक्स्ट सेशन में भी ये इतनी अच्छी तरह से ही चलेगा, लेकिन आपको 1 बार 2 बार 3 बार आपको उसको देखना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि ये जो मैकेनिज्म है वो आप अच्छी तरह से कैसे वहां पे आप दिमाग में ही मैकेनिज्म खेल सकते हैं। तो मैं आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसका एसीटोन का भी एग्जांपल बताऊंगा और क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।